Hello everyone and welcome to today's class. Today we are going to learn a bit about floors. So the topics that we are going to cover today would be we are going to learn what are floors, what are the basis of floors and need and importance of floors, along with what should be the guidelines that we should look into before selecting the flooring material for an interior space, and also what different factors, important factors are there which are to be considered before selecting flooring. So what are floors? Now, floors are literally the basis of a house, whether you call them aesthetically or practically. So floors जो हैं वो basically हमारे घर का आधार बनाते हैं, उनका basis बनाते हैं. ये वो सरफेस है जिसके ऊपर हम चलते हैं, बैठते हैं, सोते हैं और विभिन्न प्रकार की खेलने, खाना बनाने और घर के संबंधित सारी गतिविधियां हम फ्लोर्स पे करते हैं. उसका बेसिस जो है वो फ्लोर्स ही बनता है. फ्लोर्स कई सारे उपयोगिताओं से भरा हुआ होता है. वो हमें साउंड और हीट इंसुलेशन देता है, भारी भरकम सामान को इधर से उधर करने का आधार देता है. फर्नीचर अरेंज जो हम करते हैं या जो भी अलग अलग किस्म के अरेंजमेंट्स हम हमारे घर में करते हैं वो भी फ्लोरिंग के बेसिस पर ही होता है. Now because it also forms one of the largest part of any room, इसका कलर, पैटर्न, टेक्सचर जो है वो काफ़ी डोमिनेंट इफेक्ट रखता है ओवर द ओवरऑल डेकोरेटिव थीम ऑफ द हाउस. यू कैन नॉट इग्नोर द इम्पोर्टेंस ऑफ अ हाउस while thinking about or planning about the overall aesthetic appeal of your space, because it is one of the most prominently visible part of any house. फ्लोरिंग के बिना आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपकी घर की कोई थीम जो है वो डेवलप हो सकती है. सो apart from functionality, practicality, aesthetical aspect of flooring is also quite important कि उसका look, design, feel, texture कैसा होने वाला है और वो किस तरीके से आपके घर के look को और घर के theme को affect करेगा. So that is how the floor of any particular interior space can determine whether your house is going to have a pleasant look, also the level of functionality that interior space is going to offer you, and whether you are going to face any problems while residing in that place, or it is going to be a piece of cake. Now moving on, as far as flooring selection is concerned, जब भी हम किसी भी interior space के लिए किसी भी किस्म की flooring का selection करते हैं, mind you there are n number of possibilities and options available in the market as far as flooring is concerned. तो इतने सारे options में से हमें कौन सी flooring का चयन करना चाहिए, ये depend करता है कुछ एक basic general guidelines पे. आपको कुछ दिशा निर्देशों का ध्यान रखना है ताकि आप अपनी फ्लोरिंग का सही सिलेक्शन कर सकें, और ये एक ऐसा डिसीजन होता है जो काफ़ी लंबे समय तक आपके घर में रहने वाला है. सी, जब हम कंपेयर करते हैं वॉल्स या वॉल पेंट्स या वॉल टेक्सचर्स को, तो दैट कैन ऑलवेज बी चेंज्ड. यू कैन चेंज द कलर, यू कैन चेंज द टेक्सचर ऑफ अ पेंट, you can even change the wallpapers that we had discussed so far. But as far as flooring is concerned, once you have laid down the floor of a house or of any interior space, changing it is a very difficult task. You cannot change the flooring of any construction without actually ending up having a lot of work and also a lot of headache and damaging the other structures of the house. तो इसीलिए फ्लोरिंग का डिसीजन बहुत ही सोच समझ के हमें करना है, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म डिसीजन है और ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपके घर में
रहने वाला है फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। सो क्या ऐसे दिशा निर्देश हैं, गाइडलाइंस हैं जिनका ध्यान या जिनको कंसिडर करके हम एक सही डिसीजन पे पहुंच सकते हैं? द फर्स्ट गाइडलाइन दैट वी हैव टू फॉलो इज किस किस्म का कमरा है या किस किस्म का स्पेस है जिसके लिए आप फ्लोर डिसाइड कर रहे हैं। क्या वो एक वेरांडा है? वेरांडा की अगर हम बात करते हैं, इट इज़ अ सेमी शेड एरिया, धूप भी आती है, बारिश का पानी भी आ सकता है, थोड़ी बहुत शेड भी रहती है। देन लिविंग एरिया, जहाँ पर आमतौर पर ट्रैफिक बहुत कम रहता है और बहुत ही सीमित समय के लिए रहता है। इट इज़ ऑल्सो अ प्लेस जहाँ पे हम बाहर से आने वाले लोगों के लिए या सोसाइटी को हमारे घर का एक ग्लिम्प्स देते हैं। किचन हाईली फंक्शनल, हाई ट्रैफिक एरिया और एक ऐसा फ्लोर जहाँ स्टेन रेजिस्टेंस, फायर रेजिस्टेंस जैसे फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। डाइनिंग एरिया, आमतौर पर यूज़ होने वाला एरिया जहाँ पर स्टेन रेजिस्टेंस चाहिए, एंड ऑल्सो इट शुड हैव अ गुड सरफेस टू बेयर, जो चेयर्स के घिसने से वेयर एंड टेयर होगा उसको हैंडल करने की क्षमता होनी चाहिए। गेस्ट रूम, अगेन नॉट अ वेरी frequently used area, but nonetheless you want to show off your theme and the look of the house. बेडरूम्स में जहाँ ट्रैफिक काफ़ी होता है बट बहुत ज़्यादा वेयर एंड टेयर के चांसेस नहीं होते। स्टडी रूम्स, सो आप ये देखें कि आपके कमरे का या स्पेस का क्या नेचर है, and on the basis of that you can decide the kind of flooring you need. The second guideline is what are the type of activities that are going to happen in that particular room. Dancing, exercising, playing, laying, यानी गतिविधियों से भी ये तय होता है कि आपकी फ्लोरिंग कैसी होने वाली है। अगर आप बहुत ही डांसिंग या कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटी वाला रूम प्लान कर रहे हैं, देन यू हैव टू मेक श्योर दैट इट शुड बी एंटी स्लिप फ्लोर, जो बहुत ज़्यादा स्मूथ ना हो, जिसके ऊपर फिसलने के चांसेस ना हो और ना इंजरी का चांस रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक्सरसाइजिंग, ऐसा कमरा जहाँ पर आप हैवी टूल्स और मशीन्स और इक्विपमेंट्स अगर रख रहे हैं अपने एक्सरसाइज के, जिम एरिया अगर कुछ है, तो वहाँ पे आपको एक बहुत ही स्टर्डी फ्लोर की ज़रूरत पड़ने वाली है। इफ़ इट इज़ सिंपली फॉर लाइंग और फॉर लाइक अ बेडरूम पर्पज, देन द कंसिडरेशंस कैन बी लेसर। वैसे ही किचन में जहाँ बहुत ज़्यादा हीट का उपयोग होता है या बहुत ज़्यादा ऑयल का उपयोग या ग्रीस यूज़ हो रहा है, तो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको डैम्प रेजिस्टेंट, बाथरूम्स आर कंसर्न, डैम्प रेजिस्टेंस, मॉइस्चर रेजिस्टेंस चाहिए। तो ये सारी आपकी गतिविधियों से तय होगा कि आप उस रूम में क्या एक्टिविटीज़ प्लान कर रहे हैं। थर्ड वन इज ट्रैफिक। ट्रैफिक इज सच अ कंसिडरेशन जो आपको ये बताने में हेल्प करेगा कि आपको हार्ड सरफेस लेना है या आप सॉफ्ट सरफेस के साथ भी फ्लोरिंग की चॉइस कर सकते हैं। अब कितना मूवमेंट है, कितने हैवी आइटम्स जो हैं आप रखने वाले हैं उस फ्लोर के ऊपर, या फिर इट इज़ जस्ट फॉर द डेकोरेटिव पर्पजेज, लाइट, मॉडरेट, हैवी ट्रैफिक कितना है, फर्नीचर का कितना लोड होने वाला है। दीज आर द पॉइंट्स दैट शुड बी taken into consideration before selecting your floors. The fourth one is exposure to moisture or water. अगर कोई ऐसा एरिया है जैसे आसपास वॉशिंग मशीन रखी है या सिंक्स हैं, डिश वॉशर है, आपने एक एरिया है जो आपके लिए एक इंडोर नर्सरी की तरह आप करने वाले हैं, जहाँ पे पॉट्स का ओवरफ्लो, पानी का जो ओवरफ्लो है या ड्रेनेज है वो पानी काफ़ी रहने वाला है, तो आपको उसी के बेसिस पे अपने फ्लोर के टाइप का सिलेक्शन करना होगा। यू कैन नॉट गो फॉर सॉफ्ट फ्लोरिंग और रबर फ्लोरिंग इन एरियाज वेयर देर इज अ चांस ऑफ डैम्पनेस और देर इज अ चांस ऑफ वाटर ओवरफ्लो। ऐसे टाइम पे आपको डैम्प, मॉइस्चर रेजिस्टेंट फ्लोरिंग, खासकर स्टोन फ्लोरिंग या स्टोन बेस्ड फ्लोरिंग का सिलेक्शन करना चाहिए। एंड द फिफ्थ वन इज थीम. Theme plays a very important role in the selection of flooring apart from functionality, because as we had discussed, it is not just a functional element of the house, it is also an element which greatly determines what the decorative feel of the space going to be, क्योंकि ये सबसे बड़ा एरिया, सबसे ज़्यादा विजिबल एरिया जो है किसी भी हाउस का बनता है फ्लोर, इसलिए हमें ओवरऑल थीम के साथ इसे मैच करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर गोइंग फॉर सिरेमिक टाइल्स, देर आर एन नंबर ऑफ डिजाइंस, टेक्सचर्स, surfaces available in ceramic tiles,
और इन टाइल्स को सेलेक्ट करते समय हमें हमारे वॉल का कलर क्या है, घर की थीम क्या है, ट्रेडिशनल, मॉडर्न, एब्स्ट्रैक्ट, वार्म, कूल टोन्स, इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखकर ओवरऑल थीम को मैच करते हुए फ्लोरिंग जो है वो सिलेक्ट करनी चाहिए. Moving on to other set of guidelines that you should take into consideration while selecting the house flooring. The sixth one is durability. कुछ फ्लोरिंग जो स्टोन फ्लोरिंग होती है जैसे ग्रेनाइट्स और मार्बल्स, these kind of floorings are very very durable. इनके ऊपर आप हैवी फर्नीचर का मूवमेंट भी कर सकते हैं. Whereas उससे एक पायदान नीचे आती हैं टाइल्स. Imagine pushing a gas cylinder over a tile, it is bound to scratch or even break due to that impact. तो ऐसे केस में आप खास तौर पर किचन की फ्लोरिंग जो है जहाँ हैवी सिलेंडर्स या बड़े स्टोरेज कैन्स और बिन्स जो हैं उनका मूवमेंट रहता है तो वहाँ हम टाइल्स का सिलेक्शन नहीं कर सकते. सेम गोज फॉर रबर और सॉफ्ट फ्लोरिंग. वहाँ किचन में क्योंकि ग्रीस और ऑयली बेस्ड एनवायरनमेंट रहता है तो रबर बेस्ड सॉफ्ट फ्लोरिंग का चयन भी हम नहीं कर सकते. सो दिस इज द वे हाउ यू शुड take into consideration the overall environment of that room and determine आपको कितना durable flooring चाहिए, and on the basis of that you can either go for hard flooring, soft flooring or natural flooring. Then insulation. आमतौर पर एक फ्लोर हमें दो किस्म के इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, हीट एंड साउंड इंसुलेशन. आजकल हाई राइज बिल्डिंग्स में साउंड इंसुलेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर because we do not want that whatever is going on in the floor above us or in the floor below us should be transmitted to our own space. हम नहीं चाहते कि ऊपर के फ्लोर या नीचे की फ्लोर की आवाज़ें जो हैं वो हमारी स्पेस में हमें डिस्टर्बेंस करे. सो इन चीज़ों से बचने के लिए we need a sort of flooring which provides enough insulation to the outside environment as well. क्योंकि वुड एक ऐसी फ्लोरिंग है जो बहुत अच्छी इंसुलेशन देता है. टेम्परेचर इंसुलेशन की अगर हम बात करें तो बाहर की हीट, एक्सेसिव हीट और एक्सेसिव कोल्ड को घर के अंदर नहीं आने देता है और एक अच्छा इंसुलेशन प्रोवाइड करता है. सेम गोज विथ साउंड इंसुलेशन एज वेल. However, if you were to go for very very hard floors, stone flooring, then they are bound to get very cold, very hot as per the temperature, and also they emit a lot of noise while walking or moving things over them. Then another guideline is installation. कई ऐसे फ्लोर्स होते हैं जिनकी इंस्टॉलेशन की कॉस्ट जो है वो काफ़ी हाई होती है क्योंकि आपको उसको इंस्टॉल करने के लिए एक सर्टन लेवल ऑफ वर्कमैनशिप की ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्जांपल टाइल्स पहले से ही अपने सेम लेवल, सेम थिकनेस और सेम साइज की टाइल्स हमें बाजार से अवेलेबल हो जाती हैं एंड लेइंग ऑफ दोज टाइल्स इज़ वेरी वेरी ईजी. यू कैन एक्चुअली कवर अ वेरी लार्ज एरिया इन अ सिंगल डे इफ़ अगर आपको सिर्फ टाइल लेइंग करनी है तो. बट कमिंग टू स्टोन flooring, here you not only have to cut out the same shaped and sized stone slabs but also you have to ensure कि इन stone slabs की thickness भी समान हो. So that is a time taking process and it also requires a certain level of workmanship and skill on the level of the worker. तो ये installation tile installation की तुलना में थोड़ा मुश्किल होता है. So while selecting your tiles or your flooring you should have an idea of the इंस्टॉलेशन प्रोसेस एज वेल कि उस आप जो भी फ्लोरिंग का सिलेक्शन कर रहे हैं उसको इंस्टॉल करने के लिए क्या आपको कुछ एक्स्ट्रा स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ने वाली है या एनीबडी कैन डू इट. देन अनदर फैक्टर इज लेइंग. फ्लोरिंग मटेरियल को लगाने के लिए कुछ फ्लोरिंग मटेरियल में हमें प्रिलिमिनरी वर्क की ज़रूरत पड़ती है. टाइल लेइंग में भी हम कहते हैं कि हमें एपॉक्सी की ज़रूरत पड़ती है. इट्स अ केमिकल विच हेल्प्स द टाइल टू स्टिक onto the floor or the sub floor. तो वैसे ही आपको काफ़ी सारी प्री प्रेपरेशंस की भी ज़रूरत पड़ती है कुछ फ्लोरिंग टाइप्स में, और कुछ फ्लोरिंग टाइप्स ऐसी होती हैं जैसे वुड फ्लोरिंग और रबर फ्लोरिंग, लिनोलियम फ्लोरिंग, जिनकी
लेइंग काफ़ी ज़्यादा ईजी होती है और बहुत फटाफट हो जाती है. सो दैट इज़ अनदर गाइडलाइन दैट यू कैन फॉलो. एंड द लास्ट वन इज़ कंपैरिजन. Whatever type of flooring that you want to choose for your house, you should go for a market survey and do a comparative analysis of cost and what are the alternatives that are available in the market in the same category of floors that you want to go for. For example, अगर आप मार्बल की भी बात करते हैं तो मार्बल में there is a huge variety and there are huge number of options that are available in the market which offer different types of elements and different types of variety to your house. Important marbles होते हैं, then there are domestic marbles. The size of the marble varies. For example, if you want to go for a marble flooring and if you have a limited budget, then you can go for smaller slabs of marble rather than huge pieces of marble. Huge pieces, बड़े pieces flooring के महंगे आते हैं, उसी क्वालिटी में छोटे pieces सस्ते आते हैं. तो उस तरीके से आप एक मार्केट कंपैरिजन कर सकते हैं, मार्केट सर्वे कर सकते हैं टू कम टू द मोस्ट better and suitable choice in your budget and in your theme and in your nature of the housing that you are going for. So these are the general guidelines which will help you out in selection of the most appropriate flooring for your interior space. Moving on to the factors to consider. Now there are lots of factors that you can consider for selecting a house flooring. In flooring, you might find that in combination with the general guidelines that we have discussed, if we go to precise factors, we'll find that deciding the flooring of interior space is not a very simple task. You have to keep in consideration lots of factors, and also these factors when you consider are going to help you out in making the best choice for your house. The first one is initial cost. क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं फ्लोरिंग मटेरियल के केस में, तो हमें इनिशियल कॉस्ट को एक बारी ज़रूर देख लेना चाहिए. लगाना, मेंटेन करना किसी भी फ्लोर को थोड़ा कॉस्टली अफेयर होता है. अगर हम स्टोन फ्लोरिंग जैसे कि मार्बल, ग्रेनाइट की बात करते हैं तो दीज आर एक्सपेंसिव फ्लोरिंग्स. हाउएवर, once you have borne the initial cost and maintenance cost of the initial cost of the flooring, आपके लिए आगे जाकर मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होती है इन एक्सपेंसिव फ्लोरिंग्स में. मार्बल और ग्रेनाइट फ्लोरिंग ऐसी फ्लोरिंग है जिनको एक बार लगाने के बाद आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. उन्हें आगे से किसी और मेंटेनेंस कॉस्ट को आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती. मेंटेनेंस कॉस्ट आर मेनली a timely waxing or timely rubbing or कवरिंग और लेयरिंग ऑफ द फ्लोर जो हमें वुड के केस में करनी पड़ती है या फिर रबर या लिनोलियम फ्लोरिंग के केस में करनी पड़ती है, वो स्टोन फ्लोरिंग के केस में हमें नहीं करनी पड़ती. ऑल्दो इनका इनिशियल कॉस्ट हाई होता है बट मेंटेनेंस कॉस्ट लो होता है. कॉन्ट्ररी टू दिस, विनाइल, सेरेमिक टाइल्स ये मॉडरेटली एक्सपेंसिव होती हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती और इनकी मेंटेनेंस भी इतनी हाई नहीं होती. एंड द चीपेस्ट वंस आर कॉन्क्रीट एंड ब्रिक फ्लोरिंग. ये काफ़ी चीप होती हैं कंपेयर टू अदर फ्लोर्स, बट ये लुक और ब्यूटी के केस में ज़्यादा वैरायटी ऑफर नहीं करती. एक और कॉस्ट जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए अलग अलग फ्लोर्स को डिसाइड करते समय, दैट इज फाइनल लेइंग और सब फ्लोर की प्रेपरेशन में. सब फ्लोर, आप जिस फ्लोर को अपने घर में देखते हैं उसके नीचे की प्रिपेयर्ड फ्लोर होता है जिसके ऊपर मार्बल या फिर टाइल या ब्रिक्स लगाई जाती हैं. तो सब फ्लोर की लेइंग के लिए भी आपकी एक एडिशनल कॉस्ट लगती है. हाई क्वालिटी अगर आप फ्लोरिंग ले रहे हैं तो मेंटेनेंस, रिपेयर और ये एक्स्ट्रा जो कॉस्ट्स हैं वो कम हो जाती हैं क्योंकि इनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है. पर अगर आप चीप फ्लोरिंग पे जा रहे हैं तो आपको हो सकता है आगे जाकर मेंटेनेंस, रिपेयर जो है और कम ड्यूरेबिलिटी की कीमत
चुकानी पड़े. So you should always take into consideration the initial cost and also the maintenance cost of a particular flooring that you want to go for. The second factor is appearance. Any flooring should produce a very desirable and beautiful effect that should be in accordance with the overall theme of the building. जैसे आमतौर पर आज सिरेमिक टाइल्स बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रही हैं, क्योंकि आपके घर का कोई भी थीम हो, देयर इज़ a certain type of ceramic tile that is going to be available in that color, in that feel, in that texture, क्योंकि वैरायटी इतनी ज़्यादा प्रोवाइड करता है सिरेमिक टाइल्स का मार्केट. वैसे ही मार्बल और ग्रेनाइट एवरग्रीन चॉइसेस हैं जो कि काफ़ी कम गलत साबित होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव ब्रिक फ्लोरिंग जो कि एक ऑर्डिनरी अपीयरेंस देता है, बट इफ यूज्ड इन अ वेरी इंटेलिजेंट मैनर कैन एक्चुअली प्रोवाइड अ वेरी अर्दी फीलिंग टू द हाउस. सो कीप इन टू कंसिडरेशन कि आप अपना पर्सनलाइज टेस्ट किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं एक पर्टिकुलर फ्लोरिंग टाइप में, एंड देन गो फॉर दैट सिलेक्शन. The third one is cleanliness. I'm sure a lot of women must be facing problems with ceramic tiles or the glossy surfaces. We find that these surfaces show even the minutest of stain very very dominantly. बहुत छोटा सा दाग भी बहुत ज़्यादा भार लेकर नज़र आता है. तो cleanliness is again a very big factor. There are some types of floorings which do not let go of the dirt. तो जब भी आप उसे साफ करते हैं तो जो गंदगी है वो सरफेस छोड़ने की बजाय सिर्फ फैल जाती है. सो क्लीन इजी टू क्लीन सर्फेसेस जो कि ऑयल को पकड़ने वाले नहीं हो और आसानी से स्टेन छूट जाए जिन पर से, वैसी फ्लोरिंग मटेरियल्स का सिलेक्शन करना सही रहता है, खासकर किचन और बाथरूम एरियाज में. Fourth one is a very important factor, that is durability. Flooring material should be resistant to wear and tear, temperature, chemical action, यानी अगर कोई सोडा या फिर एसिड या किचन में यूज होने वाले स्पाइसेस अगर उस फ्लोरिंग पे गिर गए हैं तो किसी भी किस्म का डैमेज या स्टेन नहीं होना चाहिए. The flooring should also be strong enough to withstand the effects of foot traffic, मटीरियल या फर्नीचर का लोड जो बेयर कर ले और आसानी से स्क्रैच ना हो या टूटे ना. इसके अलावा अगर आप कभी कभार अपने फर्नीचर को मूव कर रहे हैं या हैवी आइटम्स को रीअरेंज कर रहे हैं, देन द फ्लोरिंग शुड बी ड्यूरेबल इनफ टू बेयर दोज काइंड ऑफ स्ट्रेस. द फिफ्थ वन इज डैम्प रेजिस्टेंस. ग्राउंड फ्लोर जो होता है वो आमतौर पर डैम्प रेजिस्टेंट होता है, बट अगर आप बेसमेंट जैसे फ्लोर्स बना रहे हैं तो बेसमेंट के अंदर हमारी फ्लोरिंग को खासकर डैम्प रेजिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है. सिरेमिक टाइल्स, कंक्रीट या ब्रिक्स जो हैं वो डैम्प रेजिस्टेंट फ्लोरिंग माने जाते हैं. वहीं वुड, रबर, लिनोलियम जैसे फ्लोर्स को अवॉइड किया जाता है अगर आप बेसमेंट में फ्लोरिंग का चयन कर रहे हैं तो. द सिक्स्थ वन इज साउंड इंसुलेशन. आजकल जैसे कि हमने बात किया, इन हाई राइज बिल्डिंग्स इट इज वेरी रूड टू हैव noises coming over from other flats or the neighbor's house. So in that case फ्लोरिंग का एक बहुत बड़ी उपयोगिता साउंड इंसुलेशन के रूप में भी आती है. फ्लोर शुड बी सच दैट दे नीदर शुड क्रिएट नॉइज नॉर दे शुड ट्रांसमिट नॉइज. हम उनके ऊपर चले तो बहुत ज़्यादा आवाज़ भी नहीं होनी चाहिए और साउंड अब्जॉर्बिंग होने चाहिए ताकि दूसरे स्पेसेस में वो आवाज़ें ना जाएं. ग्राउंड और बेसमेंट फ्लोर्स में जो साउंड वाइब्रेशंस होती हैं वो कम होती हैं क्योंकि ये जो फ्लोरिंग होती है वो अर्थ यानी धरती के साथ जो लैंड है उसके साथ जुड़ाव रखी हुई होती हैं. बट अपर फ्लोर्स में हमें हॉराइजॉन्टल बैरियर्स के रूप में चाहिए होते हैं हमारे फ्लोर्स, ताकि साउंड वर्टिकल डायरेक्शन में पास आउट ना करे. तो फ्लोरिंग मटेरियल ऐसा हो जो कि ना तो साउंड को प्रोड्यूस करे और जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसको भी अब्जॉर्ब करे. खासकर एजुकेशनल बिल्डिंग्स में, हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरीज,
यहाँ पर हम रबर फ्लोरिंग देखते हैं जो कि काफी अच्छा साउंड इंसुलेशन प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू स्टोन फ्लोरिंग्स. Now the other set of factors include first is thermal insulation. Thermal insulation आजकल एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि हम एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को फेस कर रहे हैं. जब गर्मी पड़ती है तो एक्सट्रीम गर्मी होती है और विंटर्स में एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर हम देखते हैं. तो फ्लोरिंग का भी उपयोग अब इंटीरियर स्पेस को थर्मली इंसुलेट करने के लिए होने लगा है. इट शुड बी पॉसिबल कि बिल्डिंग जो है अपनी इंटरनल टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर के विरुद्ध मेंटेन रखे. फ्लोरिंग ऐसी होनी चाहिए जो इंटरनल हीटिंग या फिर कूलिंग की डिमांड कम करे. इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि रबर या वुड जैसी फ्लोरिंग ऐसे एरियाज में जहां एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं वहां लगाएं ताकि वो बाहर के एक्सट्रीम टेम्परेचर से अंदर की स्पेस को इंसुलेशन दे सकें. अनदर फैक्टर इज स्मूथनेस. हम चाहते हैं कि हमारा जो भी सरफेस हो, फ्लोर सरफेस हो, वो स्मूथ हो, इवन हो. However, it should not be as smooth कि वो स्लिपरी हो जाए क्योंकि ऐसे केस में इंजरीज होने की चांसेस और रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. So, when we talk about smoothness, the floor should be smooth, even and pleasantly beautiful. It should look beautiful and even rather than rough and bumpy. But it should not be as smooth कि वो हर कोई जो उसके ऊपर चल रहा है वो स्लिप होने का खतरा रहे. Then another one is hardness. गुड क्वालिटी फ्लोरिंग मटेरियल जो कि किसी भी सरफेस, किसी भी उसके ऊपर चलने वाले लोगों के पैरों के निशान या फिर उसके ऊपर रखे हुए हैवी सामान के निशान ना दिखाए, वो डिजायरेबल प्रॉपर्टी होता है. नॉर्मली हार्ड सर्फेसेस जैसे कंक्रीट, मार्बल, ग्रेनाइट और सिरेमिक टाइल्स जो हैं वो किसी भी किस्म के इंप्रेशन नहीं दिखाते. बट रबर और सॉफ्ट फ्लोरिंग जो होती हैं वो इम्प्रिंट्स और इम्प्रेशंस दिखाते हैं विच इज़ नॉट अ डिजायरेबल क्वालिटी. सो गो फॉर हार्ड मटेरियल्स जिससे आपके ऊपर के फर्नीचर या हैवी आइटम्स के इम्प्रेशंस नज़र ना आए. देन comfort. We need comfort in whatever element that we choose in our interior space. The flooring material should be such that आसानी हर चीज़ में कंफर्ट रहे, चलने में, बैठने में, सोने में आपकी फ्लोरिंग आपको हेल्प करे. कंफर्ट पर्सनल प्रेफरेंस पर होती है. कुछ लोगों को स्मूथनेस कंफर्टेबल लगती है, कुछ को नॉइज कंट्रोल ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, कुछ लोग लाइट रिफ्लेक्शन को प्रेफर करते हैं फ्रॉम दी फ्लोरिंग. some do not prefer a lot of light reflection, so it is a personal matter, but whatever you find comfortable, there is always a flooring variety that is available that can help you out in your level of comfort. Then we have fire resistance. ये एक अपर फ्लोरिंग मटेरियल के लिए काफ़ी ज़रूरी फैक्टर है. फ्लोरिंग मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो सफिशिएंट रेजिस्टेंस दे फायर को और साथ में कंबस्टेबल ना हो. फायर रेजिस्टेंट होने के साथ साथ इट शुड बी नॉन कंबस्टेबल. नॉन कंबस्टेबल यानी जैसे रबर्स या लिनोलियम्स जो होते हैं वो फायर में खत्म हो जाते हैं, ऐसी फ्लोरिंग की बजाय फायर रेजिस्टेंस ही नहीं, नॉन कंबस्टेबल फ्लोरिंग हमें चयन करना चाहिए. आमतौर पर फायर रेजिस्टेंस खासकर किचन्स में ज़रूरी होता है. इसके अलावा हमारी एक जिम्मेदारी होती है कि जिस भी स्पेस को हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसके अंदर फ्लोरिंग ऐसी हो जो कि उसके अंदर रखे हुए लोगों और सामानों को फायर से सुरक्षा दे सके और कंबस्ट यानी खत्म ना हो. Then we have maintenance. This is a very hidden factor that people fail to consider while selecting flooring. मेंटेनेंस कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए. जैसे सिरेमिक टाइल्स, मार्बल्स, कंक्रीट, इनमें मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनिशियल कॉस्ट चाहे हाई हो. हाउएवर वुड फ्लोर जहाँ आपको रिपेयर, पॉलिशिंग, वैक्सिंग की ज़रूरत पड़ती रहती है वहाँ मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी इनिशियल कॉस्ट से भी हाई हो जाती है. सो मेंटेनेंस तब कम होती है जब मटेरियल ऐसा हो जो कि स्टेन रेजिस्टेंट हो, जिसको पॉलिशिंग और चमकाने की ज़रूरत ना पड़े और
वेयर एंड टीयर को हैंडल कर सके। इन दैट केस आगे आने वाली मेंटेनेंस कॉस्ट फ्लोरिंग की कम रहेगी। Then there is a small factor, that is light reflection. If you want your space to look bright and wide and large, then your flooring should reflect as much light as possible. The floor which reflects more light makes the whole space look bigger and brighter. Color of the floor here is important because white बेस्ड कलर्स जो हैं जैसे मार्बल टाइल्स में अवेलेबल हैं वो ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे और ज़्यादा स्पेशियस दिखाएंगे किसी भी एरिया को। लाइट कलर रिफ्लेक्ट करेगा, डार्क कलर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। जैसे कि सिरेमिक्स, जैसे कि ग्रेनाइट्स जो हैं वो आमतौर पर डार्क कलर में आते हैं ज़्यादातर, तो दैट फ्लोरिंग माइट नॉट रिफ्लेक्ट दैट मच लाइट एंड इट माइट make the space look smaller. Then we have the design. Now this again goes with the theme of the house and the overall decorative planning of the house. आपकी फ्लोर की डिज़ाइन इस तरीके से हो जो कि अगर आप हर रूम के लिए अलग अलग फ्लोरिंग का चयन कर रहे हैं तो आप ऐसी फ्लोरिंग का चयन करें जो कि चाहे रूम टू रूम फ्लोरिंग अलग हो बट सरफेस सेम हो, इवन हो और चलने में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके साथ ही डिज़ाइनिंग और भी एक बड़ा फैक्टर होता है। इफ़ यू आर गोइंग फॉर लार्जर रूम्स देन यू कैन प्ले विद डिज़ाइंस। फॉर स्मॉलर रूम्स ओवरली डिज़ाइन, ज़्यादा डिज़ाइन वाले फ्लोरिंग का चयन हमें नहीं करना चाहिए। द सर्फेसेस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कई बार अलग अलग डिज़ाइन लेने के चक्कर में हम सरफेस को या सरफेस रफनेस को इग्नोर कर देते हैं। सरफेस रफनेस जो है फ्रिक्शन को अफेक्ट करती है और हमें एडिक्वेट सरफेस रफनेस चाहिए ताकि एक्सीडेंट्स या फॉल एक्सीडेंट्स जो हैं, गिरने से होने वाली इंजरीज जो हैं, उसका रिस्क हम कम कर सकें। So these were about 12 to 14 factors that you should keep in mind before going for flooring selection, and if you consider all these factors you will lead to a better and more suitable flooring for your house. So that was all for today's class. Whatever we have discussed so far, the notes regarding these topics are available in the description box below. Thank you all very much.